Just give me a minute. Okay, let's start. The question which is there, I think we have solved it. 44th was over. I'll just repeat it because it is the part of that particular PowerPoint presentation slide. So 44. How many ways 5 different books can be arranged on a shelf if there are no restrictions? Quick answer. Permutation combination is the topic going on. 5 books to be arranged. Better you give me in factorial. Yeah, okay. Even if you give me total answer, that is 120, I know 5 factorial is 125. 5 factorial typing thoda sa kam hoga. 5 and then factorial. Okay. Next, correct. Let's come to the second one. 5 factorial, which is 120. 2 books are always together. In factorial terms, the answer here. 2 books are always together. Total 5 books are there. Out of 5 books, 2 books have to be together. सोचो जरा वापस सोचो 4 factorial into 2 factorial, otherwise 2 factorial into 4 factorial. कितने बुक्स है तुम्हारे पास? 5 ना? 5 बुक है. अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं ग्रुप का? 5 बुक्स है. Let me draw lines and say these are the books. 1, 2, book 2, 3, 4 and 5. 5 books. 2 books together. Let me make a group. ये 2 बुक का एक ग्रुप बनाया. Now that group will be treated as one. ये एक बुक हो गया. Group of the book is to be treated as one. So this is 1. और आगे कितने बुक्स है? 3 और है ना? ये बुक 2. कौन सा वाला? ये वाला बुक 2. ये 3 और ये 4. ये 4 हो गया. ग्रुप को एक पकड़ना है. ग्रुप 1 सेपरेट बुक्स. तो 4 बुक्स हो गया. 4 factorial. And then group में कितने बुक्स है? 2 books. Those 2 books can be arranged in 2 different ways. So 2 factorial. 4 factorial into 2 factorial. तो 3 factorial कहाँ से लाया था आपने? It can be 4 factorial. It can be 4 factorial. Okay. It can be 4 factorial into 2 factorial or 2 factorial into 4 factorial. अभी क्लियर कि अभी भी गलती करोगे? Earlier people have done mistake saying that 3 factorial na? Priya, Devanshu, Himanshu, is it clear now? भाई नहीं करने का. Next, 2 books never together. 2 books never together. Waiting for the answer. कैसे? जिनको नहीं आ रहा है? नहीं, ऋषभ गलत हो गया. जिनको अभी भी नहीं समझ रहा है उनके लिए कितना बुक्स है? 5 बुक्स. 2 बुक्स शुड नॉट बी टुगेदर. सो एक बुक बाजू में रखने का. 2 बुक्स शुड नॉट बी टुगेदर. तो एक बुक बाजू में रखने का. 4 बुक्स अरेंज कर लेने का. 2 बुक्स 2 बुक्स शुड नॉट बी टुगेदर. तो एक बाजू में रखने का. बाकी के 4 को अरेंज करने का. जैसे इस बुक के साथ वो नहीं होना चाहिए.
इस बुक के क्रॉस मारा उस बुक के साथ, 4 तो अरेंज किया, अभी जो 5वां अरेंज करना है वो इसके आजू बाजू में नहीं होना चाहिए, तो किधर किधर हो सकता है, 1 2 and 3 places. Let me make arrows. This is 1, this is 2, this is 3. इसके आजू बाजू में नहीं होना चाहिए, तो इधर भी नहीं अलाउड, थोड़ा डार्क कर लेता हूं, इधर अलाउड नहीं बुक रखने को, इधर भी बुक रखने को अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3, 3 फैक्टोरियल नहीं 3, 4 फैक्टोरियल इंटू 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 बुक साथ में नहीं होना चाहिए, तो 2 बुक साथ में नहीं होना चाहिए, उसमें से एक बुक हटा देने का, बचे 4 बुक, 4 बुक को पहले अरेंज करो 4 फैक्टोरियल, फिर अभी जो बचा हुआ बुक है वो रखने का है, कहां पे रख सकते हैं, वो एक बुक के आजू बाजू में नहीं रख सकते, बचे 3, सो 3 इंटू 3, 3 फैक्टोरियल नहीं 3, the difference between into 3 and 3 factorial, 3 factorial will be 6 and 3 will be just 3. Okay, is that clear? गड़बड़ नहीं करना, is that clear? Hello dear student, is that clear? Next, अभी आंसर्स आप देंगे, उसके बाद आज सर्कुलर परमिटेशन भी होगा, ओके, राउंड द टेबल बैठने वाले तो, बट उसके पहले 3 boys and 3 girls are to sit in a row. How many ways can this be done if there are no restrictions? First one, there are no restrictions. अभी गलती नहीं करना है इसमें भी, आराम से 2 मिनट ज्यादा लेंगे चलेगा। 3 boys, 3 girls have to be sit in a row. How many ways that can be done if? Correct. 3 plus 3, 6 of them are there, ना? Restriction तो कुछ नहीं है। So 3 boys plus 3 girls, so total 6 factorial, which is 720. वो बात किया था, 6 फैक्टोरियल आ गया तो आपको बाद में 720 करने को आ जाएगा। तो एबीसीडी में देखना भी पड़ेगा, आपके जो ऑप्शन दिया उसमें अगर 6 फैक्टोरियल ही दिया है तो 6 फैक्टोरियल, अगर उन लोगों ने नंबर में आंसर दिया तो चेक करना पड़ेगा फिर 6 फैक्टोरियल कितना है। नेक्स्ट ट्राई करो, There's a girl at each end. Each end, रो में बैठ रहे, each end, 2 एंड हो गए, उधर लड़की चाहिए उनको, बीच में कैसे भी चलेंगे, सोच के देखो। चाहिए तो वेकेंट स्पेसेस का इस्तेमाल करना तो भी चलेगा। फाइनल आंसर दे दो। No, not correct, not correct, not correct, not correct, not correct. Still not a single answer which is correct. एक भी करेक्ट नहीं, सोचो। वेकेंट स्पेसेस बनाओ, वेकेंट स्पेसेस बनाओ और करो। Now there are some correct answers. चलो मैं समझा देता हूं। ओके, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर देयर? टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑल टुगेदर, सब मिला के। कीप रिप्लाइंग। सब मिला के कितना सीट? 6। सो लेट मी मेक वेकेंट स्पेसेस से करके दिखा देता हूं आपको। 6, 1 2, बॉक्स बनाना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, लाइन भी ड्रॉ कर सकते। 3 4 5 और 6। ओके, सो दिस इज वन एंड एंड दिस इज अनदर एंड। नाउ दिस एंड पे आते हैं, इस एंड पे कितना पॉसिबिलिटीज है, कौन बैठना चाहिए एंड पे? कौन होना चाहिए? गर्ल होना चाहिए। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज हियर एट दिस बॉक्स? बना लेता हूं इधर, इस बॉक्स में कितने पॉसिबिलिटीज है?
देयर शुड बी अ गर्ल। तो कितना, 3 पॉसिबिलिटीज है, 3। व्हाई 3? देयर शुड बी अ गर्ल, तो 3। अब चलते हैं दूसरे एंड पे, रेस्ट्रिक्शन इधर भी है, दूसरे एंड पे, इस एंड पे भी कौन होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए। तो इस बॉक्स में कितना डालू, अभी जो बॉक्स बना है उस बॉक्स में कितना डालू, 2, because out of 3 1 girl is here, so remaining are 2 girls, so 2। बीच में कोई कैसे भी चलेगा, 2 गर्ल बिठा लिए, अभी कितने जन बचे टोटल, ऑल टुगेदर हाउ मेनी आर लेफ्ट, 4। हियर देयर आर 4 ऑप्शंस, कोई भी बैठ सकता है, लड़की भी बैठ सकती है, लड़का भी बैठ सकता है, 4। इधर 3, इधर 2 और इधर 1। So this is nothing else, 4 into 3 into 2 into 1 will be called as, अभी जो बड़ा बॉक्स बनाया उसको क्या बोलेंगे, 4 फैक्टोरियल है वो, 4 into 3 into 2 into 1 multiplied by 3 multiplied by 2, or you may say 3 factorial, 3 factorial, but I'll prefer saying 3 into 2। तो चाहिए तो इधर डालता हूं, ये जो 3 है ये 3 इधर आएगा और इधर वाला 2 इधर आ जाएगा, बीच में 4 फैक्टोरियल, so 3 into 4 factorial into 2 can be said as 4 factorial into 3 factorial, can be said that, because into 1 से फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर कि अभी भी नहीं क्लियर, ऐसा सोचने का दोस्तों, फैक्टोरियल में इधर परम्यूटेशन में ऐसा सोचना है आपको, इसलिए तो वेकेंट स्पेसेस सिखाया मैंने आप लोगों को, सोचते तो शायद गलत नहीं जाते थे, बहुत सारे करेक्ट आंसर आ जाते थे। सो आंसर 3 into 2 into 4 factorial, which is 144। चलो नेक्स्ट, boy and girls are at alternate place, boy and a girl are at alternate place। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। गए नहीं करो, गए नहीं करो, गए नहीं करो। सोच के करो, बी आर रॉन्ग आंसर, थिंक ओवर इट। आई डोंट आंसर इन 35 45 नंबर में मत दो, फैक्टोरियल में दो तो मेरे को ज्यादा अच्छा समझेगा कि आपको कितना समझा है। अदरवाइज यू से दैट वे 3 into 2 into 4 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर मत दो 144 जैसा, अर्लियर आंसर में 3 into 2 into 4, अदरवाइज यू कैन से 4 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। चलेगा, okay, let me explain you once again। boys and girls sit at alternate place, 3 boys and 3 girls, 3 boys and 3 girls। let first the boys sit together, sorry, let the boys sit, boys b लिखता हूं, boys कितने हैं? 3, so 3 फैक्टोरियल आएगा boys का। let the boys sit first without any restriction, so 3 फैक्टोरियल। समझे यहां तक? गर्ल्स अरेंज करना बाकी है। let the boys sit by 3 factorial,
Now, if you want vacant spaces, I can explain you with vacant spaces also. Let the boys sit. Okay, okay. Abhi girls, boys, once they sit, let me say here, B1, boy 1, B2, and B3. फाइन, यहां तक समझे? नाउ गर्ल्स को बैठने को हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? सोच समझ के जवाब दो. हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर फॉर द गर्ल्स टू सिट? Places, number of places. 3 girls to sit, I know, but how many places are there where girls can sit? 4 places. 1, 2, 3, and 4. Are the girls going to occupy all 4 places? Can girls occupy all 4 places? No. How many girls are there? 3. Only 3 girls are there, na? How many sets are there? 4. 4 sets, 3 girls. So, yes, 4P3. 4P3. Agreed? So, अब खत्म नहीं हुआ आंसर. यहां तक समझा क्या? Boys sitting is 3 factorial. Boys sitting is 3 factorial. And girls के लिए क्या हो गया? I am writing in P form, 4P3. यहां तक समझा? Is this clear? खत्म नहीं हुआ आंसर अभी भी. क्या बाकी है अभी? What is left? Another arrangement is left. इधर क्या किया? पहले बॉयज को बिठाया ना. Other arrangement is ask the girls to sit first. So that is girls, ask girls to sit. बराबर है? Girls. That is 3 factorial. गर्ल्स सिट हो जाएंगे तो G1, G2, and G3. Now ask the boys to sit. How many places are there for boys to sit now? Four places. And again, boys are going to use 3 places. 4 places for boys. 1, 2, 3, 4. Hello. So that is. So finally, for these girls, second part also, again 3 factorial for the girls to sit. ऊपर क्या था? 3 factorial for boys to sit. Now 3 factorial for girls to sit, and for boys to sit 4P3. हेलो. अभी दोनों के बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा या इंटू आएगा? प्लस आएगा या इंटू आएगा? दोनों के बीच में 3 factorial into 4P3 and 3 factorial into 4P3. There are 2 terms, 2 things. इनके बीच में क्या आएगा? This is one and this is another. 2 हो गए. प्लस आ जाएगा because or either they can sit, either boys will sit first and then girls will sit, and then girls will sit. So that multiply आएगा. Or
Girls will sit first and then boys will sit. ये तो और आ रहा है तो प्लस. Clear? Is that clear? अरेंजमेंट है नीचे कैसा करने का. फर्स्ट लेट बॉयज सिट then girls sit, or let the girls sit first and then the boys sit. हेलो, कुछ जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का. आंसर बता रहा हूं मैं, ये पहले समझा क्या. तो आप बोलेंगे प्रिंटेड आंसर है सर, वही दिखाते हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाई. So final answer is this. Correct? तो ये आएगा ना रे. 3 factorial is what? 3 factorial is 3 into 2 into 1 into 1 नहीं लिखता हूं, मीनिंगलेस है. into अब क्या 4p3. 4p3 हाउ डू यू राइट 4p3? 4 3 टाइम्स लिख. 4 का फैक्टोरियल 3 टाइम्स ना, शॉर्टकट अपना. 4 into 3 into 2. This is 4p3. And this is 3 factorial. Into 1 नहीं लिखा मैंने, लिखना है लिखो आप into 1. ट्वाइस करना है, ऐसे 2 बार करना है ना. Once for the girls and one for the boys. तो इसलिए into 2 किया मैंने. आ रहा है आंसर 288 कि नहीं आ रहा है अभी भी? करके दिखाओ अभी भी, पूरा सॉल्व करो. 3 into 2 6. चलो कर देता हूं. कर देता हूं. 3 into 2 is 6 into 4 into 3. 4 into 3 12. 12 into 2 24. That is equal to 4 into 6 into 24 is 144. सर आपने आंसर तो 288 बताया. कर रहा हूं ना. ये पहले का आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 144. फिर दूसरे का आंसर भी 144. दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज और है बीच में, तो ऐड करेंगे. ऐड करके टोटल आएगा 288. हेलो दोस्तों, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, क्या चल रहा है? इतना सब कैलकुलेशन मेरे से छोटा छोटा कैलकुलेशन आंसर दे दिया, उसके बाद 288 कैसा आ रहा है तो देख लेने का. अगर वो 288 नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है. सही करता था मैं. इवन आई कैन डू मिस्टेक इन कैलकुलेशन, बट 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इतना तो करेक्ट है. इंटू 2 क्यों? वंस फॉर बॉयज वंस फॉर गर्ल्स, सिमिलर रिपीट हो रहा है इसलिए इंटू 2. अरे कोई डाउट कुछ बोलेंगे? बोलेंगे मतलब अगर टाइप करेंगे मैसेज में तो पता चलेगा मेरे को. अंडरस्टूड? आराम से, घाई नहीं करना है. इनिशियली जब
आप एक्सपर्ट बनोगे ना तो कहीं करने का, जब तक एक्सपर्ट नहीं बने तो आराम से कर लेने का। सोच के देखो मैंने कितने तरीके से अलग अलग करके दिखाया। I'm erasing everything my work। हाँ, नेक्स्ट क्या आ रहा है? ऑल बॉयज सिट टुगेदर। इसमें तो गलती होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, ये अपना रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑल बॉयज सिट टुगेदर, 3 बॉयज है, ऑल 3 बॉयज शुड सिट टुगेदर, एक साथ बैठना है इनको।